والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سن الله في كل موجود نقطة غاية الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح من غلق المخلد الحق بالحق بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهر تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی ہدایت کی آیتوں کے تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ظاہر ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے جس کا کوئی مطلب کسی نے لکھا نہیں. اس کا اگرچہ کوئی مطلب بھی ہوگا تو ہمارے امام ہی جانتے ہوں گے اور وہ جب آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. سلوات میرے بہرحال میں ایک تقریر سن رہا تھا کسی عالم کی، تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر حروف مقطعات جو ہیں وہ ٹوٹل پورے قرآن کے اندر 14 ہے اور اس حروف مقطعات کے اندر آیت بھی 14 ہے. تو انہوں نے کہا کہ 14 ہی کے صدقے میں پورا قرآن نازل ہے. تو میں نے کہا کہ ایک بار اس کو چیک بھی میں کروں. تو جب میں نے شروع کیا چیک کرنا تو ٹوٹل پورا قرآن میں 29 جگہ پہ حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا. یعنی قرآن مجید کے 29 سورے ایسے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہیں. اور جو عالم صاحب نے کہا تھا 14 ہے تو یقیناً وہ 14 ہی ہے. اور ان 14 کو جب الگ الگ کر کے میں نے اس کو کاؤنٹ کیا، ایک ایک حرف الگ الگ کاؤنٹ کیا تو وہ بھی 14 تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے اندر 14 کے 14 کی ہستی سمائے ہوئی ہے. صرف سن کے پڑھ دینا کمال کی بات نہیں ہوتی. اگر سن کے پڑھتا تو مجھے اندر سے وہ بات نہ محسوس ہوتی جو اس وقت محسوس ہو گئی، اس لیے کہ میں نے تصدیق کر لی. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر فی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ کو شک کرنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں، آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر کیوں شک نہیں کر سکتے؟ اس کے اندر ہم کیوں نہیں ہوتے؟ تو عزیزان محترم، اگر آپ کسی اسکول کے اندر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیں تو اب اس اسکول کا جو قانون ہے اس قانون کو آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے. ایسا نہیں ہے کہ ایڈس انٹرنیشنل کے اندر آپ کسی دوسری اسکول کا ڈریس پہنا کے بچے کو بھیج دیں گے اور کہتے ہیں نہیں صاحب وہاں پہ تو یہ ڈریس چلتا تھا آپ کے یہاں نہیں. تو وہ آپ سے کہے گا کہ اگر حدود ایمس میں آ گئے ہو تو پھر ایمس کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. اب اگر تم حدود اسلام میں آ گئے ہو تو اسلام کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ نے تم سے پہلے نہیں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. لیکن اگر تم نے ایکسپٹ کر لیا اسلام تو تمہیں حق بھی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں تم ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے خود سے ایکسپٹ کیا، اللہ نے زبردستی نہیں کرائی. اب آگے جو بات کہے گا اللہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں ہم شک نہیں کر سکتے، کچھ چون چلا کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے آپ کو حق نہیں کہ چون چلا کر. قرآن میں سلیمان کا تخت اڑتا تھا ہوا میں، اب یہ عقل سے باہر ہے. قرآن کہتا ہے کہ چیٹی نے حضرت سلیمان سے بات کی، یہ عقل سے باہر ہے. لیکن ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کچھ بھی بات کہنے. تو اب جب اتنی بڑی کتاب ہے تو یہ ھدی للمتقین کی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ذرا توجہ کیجیے، صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیا سارے مسلمان متقی ہیں؟ کیا سارے عالم انسان متقی ہے؟
तो जब मुसलमान ही सारे मुत्तकी नहीं है तो फिर इंसान कहाँ से मुत्तकी होगा? अब आप जरा सोचिए कि आज के जमाने में अगर किसी को काफिर को हिदायत की जरूरत हो तो कहाँ जाए? कुरान कह रहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों की हिदायत करती है, सबकी नहीं करती। यानी अगर कुरान से तुम्हें हिदायत चाहिए तो कम से कम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी की पहचान यही कुरान आगे बता रहे हैं। मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जिनका गैब पे ईमान है। अब गैब क्या चीज होता है? गैब हमारा वाला गैब जिसको हम गैब समझते हैं, ये हमारे। अब ये भी समझिए कि अल्लाह के लिए कोई चीज गैब है ही नहीं। जब कहते हैं इल्म गैब अल्लाह के पास है, गैब तो तब होगा जब कोई चीज अल्लाह के सामने से गायब होगी। अल्लाह के सामने तो सब कुछ आया है, तो फिर ये इल्म गैब लफ्ज आया कहाँ से? इल्म गैब इसलिए आया कि तुम जो कह रहे रसूल के पास इल्म गैब नहीं है, रसूल के पास नहीं बल्कि रसूल के उन नुमाइंदों के पास भी अल्लाह ने इल्म गैब दे दिया है जिसको रसूल ने मुकर्रर किया। आप पढ़ के देख लीजिए, कौन है जो अल्लाह के इल्म का अहाता कर सके सिवाय उन लोगों के कि जिन्हें अल्लाह चाहता हो। अल्लाह के इल्म का अहाता करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है हुदूद इल्म इलाहिया पर। जो भी हो, यहाँ पे रसूल नहीं कहा है, सूरह आल इमरान में कहा है इल्ला मन इत्तबअनी रसूल। इल्म गैब किसी पे से बड़ा तो इल्म ही किसी के ऊपर अपने इल्म को जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इत्तबअनी रसूल, सिवाय उन रसूलों को कि जिनको अल्लाह चुन ले। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इल्ला माशा, कोई है ही नहीं कि जो अल्लाह के इल्म का अहाता कर सके सिवाय उन लोगों के कि जिनको अल्लाह चाहता हो। तो यहाँ पे रसूल लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, इसके मानी है कि रसूल के साथ साथ कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। अब लोग तो हैं मुत्तकियों की हिदायत करता है, काफिर की हिदायत होगी नहीं, सबकी हिदायत होगी। ये आज का काफिर कल कयामत के लिए सवाल करेंगे, परवरदिगार तेरी एक ही मौजिज़ा था हमारे जमाने में, तो तेरा तो एक ही मौजिज़ा, रसूल का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान, उससे बढ़ के कोई मौजिज़ा ही नहीं आज के दौर में। अब वो हिदायत ही नहीं कर रहा है, वो बढ़ के कहते परवरदिगार हम क्या करें? हमारी हिदायत के लिए एक ही चीज थी मौजूद दुनिया के अंदर, वो कुरान थी। उसने साफ कह दिया कि हम सिर्फ मुत्तकियों की बात हिदायत करेंगे, सबकी हिदायत करेंगे नहीं तो अब हम कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है कि अगर कुरान को सिर्फ आप पकड़ लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुरान रहेगा, तो आप दुनिया की तो छोड़िए अपनी ही हिदायत नहीं कर पाएंगे। इसके माने ये है कि इसके साथ साथ कोई और होना चाहिए कि जिसके जरिए से हम न सिर्फ अपनी बल्कि कुल कायनात की हिदायत कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आयतल कुर्सी के जुमले सूरह बकरा के अंदर इरशाद हो गया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान लाने वालों का वली है। अच्छा, वली तो करता क्या है? युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुल्मात इलन नूर, ईमान वालों को अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आता है। ईमान खुद रोशनी है। और जो ईमान खुद, अगर आपने कलमा पढ़ लिया, अगर आपके पास ईमान है तो आप रोशनी में आ गए। और अल्लाह पहले कह रहा है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। तो जब ईमान वाले खुद रोशनी में है तो अंधेरे से रोशनी में निकालने की जरूरत क्या है? इसके माने वो रोशनी में आ गए ना। फिर अल्लाह कहेगा युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुल्माति इलन नूर, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आता है। इसके माने ये है कि जिसे हम मुत्तकी समझते हैं अल्लाह की नजर में वो मुत्तकी नहीं है। जिसको हम ईमान वाला समझते हैं अल्लाह की नजर में वो ईमान वाला नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर आगे कहे वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, और जो काफिर है उनका वली शैतान है, तागूत है। वो क्या करता है?
वो उन्हें नूर से निकाल के जुल्मात की तरफ ले जाता है, यानी ईमान से निकाल के अंधेरी की तरफ ले जाता है, ईमान से निकाल के कुफ्र की तरफ ले जाता है, ईमान से निकाल के शिर्क की तरफ ले जाता है, ईमान से निकाल के निफाक की तरफ ले जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, कुफ्र ईमान का मुखालिफ, शिर्क ईमान का मुखालिफ, निफाक ईमान का मुखालिफ। इसके माने ये है कि जिसने शैतान को अपना वली मान लिया, ताबूत को अपना वली मान लिया, वो भले ही कलमा पढ़ता रहे, उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ और वो सीधा नूर से निकल के अंधेरे की तरफ चला जाएगा। और अगर कोई ईमान वाला काफिर भी है, अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम ये बात समझ ही ना आता अगर करबला ना हो। जनाब भाई भी कल भी आ गए, अब मौला के लिए शहादत दे दी, तारीख चाह के दिखाइए क्या इमाम हुसैन ने कलमा पढ़ाया है? कलमा पढ़ने वालों के लिए हजरत कल भी लगा कि मैं तो कलमा पढ़ने वालों को देख रहा हूँ कि इनका क्या है। तो वो कलमा पढ़ने वाले बेहतर थे जिसने हुसैन को कत्ल किया, या ये बेहतर था कि जो हुसैन की तरह से कत्ल हुआ? यही तो है आयतल कुर्सी का पूरा मतलब। अल्लाह ने इसे अंधेरे से निकाल के नूर की तरफ ले आया, और जब कलमा पढ़ के रोशनी में थे, शैतान को जब वली मान लिया कि नूर से अंधेरे की तरफ चले गए। सलवात अच्छा, अब सवाल फिर यहाँ ये पैदा होता है कि वो नूर से निकल के अंधेरे की तरफ गए तो क्यों गए? कि जब एक आदमी ने ईमान ले आया है, अल्लाह को मान लिया, रसूल को मान लिया, और जो चीजें कुरान बता रहा है वो सारे एक्सेप्ट कर लिए, क्या कहेगा? अल्लाह युमिनूना बिल गैब व आक़िमुस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पे ईमान रखते हैं, सलात कायम करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया उनमें से वो इंफ़ाक़ करते हैं। खुदा में ये किसकी अलामत है? ये मोमिन की अलामत। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, अब वो लोग जो ईमान रखते उस पे जो उन पे नाज़िल, तो आप पे नाज़िल, बिमा उनज़िला इलैका जो आप पर नाज़िल, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ, व बिल यौमिल आखिरा, और आखिरत के ऊपर भी ईमान लाते हैं। यही वो लोग उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल फाइज़ून। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता है और यही फला पाने वाले। अब आप जरा सोचिए कि अगर इस कुरान को हम हल्के में ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाएंगे तो जितने भी यजीदी करबला के मैदान में हुसैन को कत्ल करने आए थे, क्या उनका आखिरत पे ईमान नहीं था? क्या उनका रोज़े जज़ा पे ईमान नहीं? क्या वो हाफिज़ान कुरान नहीं थे? कुरान तो उनका ईमान नहीं था। और आज भी मुसलसल देख के चले आइए आप, युनफिकून भी करते, भले ही रियाकारी के लिए करते, मगर करते हैं। अब ये एक अलग मौजूद है कि रियाकारी से भी बचना है। युनफिकून भी अल्लाह की नजर में जो युनफिकून है और हमारी नजर में जो युनफिकून है उसमें बड़ा फर्क है। अज़ीज़ान, हम एक किताब भी अगर छपवा के बंटवा दे तो अपने नीचे नाम लिखवा देते हैं। ये युनफिकून अल्लाह के लिए नहीं है, ये आपने अपने खुद के लिए किया कि हम पहचाने जाए। आप पहचाने जाए, आपका आज आपको यही मिल गया, अब वहाँ कुछ नहीं है आपके। अब अगर आपने अल्लाह के लिए किया है तो फिर आप दाहिने हाथ से दे दीजिए, बाएं हाथ को भी ना पता चले। तो आप देखिए कि अभी कोरोना काल गुजरा है, लोग एक एक केले देके सेल्फी ले, फोटो खींच खींच के व्हाट्सएप पे देंगे, जी हमें दिखाना है, बेइज्जत करें। जो बेचारा जो जरूरतमंद है वो गैरतमंद भी है, वो भूख बर्दाश्त कर लेता है मगर ले भी नहीं जाता है, फिर अपने रब से कहता है कि परवरदिगार तेरे युनफिकून करने वाले, तेरे बांटने वाले इस तरीके से कि बेइज्जत कर। तो इस मजबूर की आग कहाँ है? अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने बात की कि अब कोई ना कोई तो होना चाहिए कि जो हमें सही हिदायत करे। जब तक हिदायत नहीं मिलेगी तब तक हम आगे न पीछे। हिदायत ही तो चाहिए, और जब हिदायत मिलेगी तभी हम फला पाएंगे। और हिदायत कुरान करता नहीं है सब। तब अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कुरान क्या, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। सवाल यह है रस्सी ही क्यों कह दिया अल्लाह ने? रस्सी से मजबूत और कोई चीज होती ही नहीं है क्या?
जंजीर है, चैन है, लोहा तो बहुत पहले ईजाद हो चुका, उस पर लोहे की जंजीरें बनती थी, तो अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा, चैन नहीं क्यों कहा? तो अब अज़ीज़ान मतलब रस्सी जो बनती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, यानी दो ही रट होती है उसके जो आपस में जुड़ी हुई है। तो अब इस रस्सी के लफ्ज को अहले बैत अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाए तो फिर रसूल कहते हुए नजर आएंगे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गला कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इज़्ज़त अहले बैत, एक तो अल्लाह की किताब है और एक मेरी करीबी इज़्ज़त है। अगर इन दोनों से तुम जुड़े रहोगे तो क़यामत तक रहोगे, और यही है वो अल्लाह की रस्सी जो आपस में गुथी हुई है, इन दोनों में से एक को भी छोड़ा तो तुम नाकामयाब होगे। सलवात पर ये बात कही जा रही है कि अब कुरान पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया, अहले बैत पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया, ये मुमकिन ही नहीं है। पकड़ेगा तो दो रस्सी पकड़ोगे तो दोनों ही आएगा ना, एक आएगा नहीं कि उसको खोल के आप एक पकड़ ले एक छोड़ के, भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो कुरान वाली जो रस्सी है वो पकड़ ले, अहले बैत वाली जो रस्सी वो हम पकड़ ले, ये मुमकिन ही नहीं। पकड़ेगा आदमी तो दोनों ही पकड़ेगा, और नहीं पकड़ेगा तो एक भी नहीं पकड़ सकता। ये मुमकिन ही नहीं कि कुरान और अहले बैत, किसने आपको हक दे दिया कि आप कुरान और अहले बैत को जुदा करें जब ये आपस में मिले हो? नहीं मुमकिन है अज़ीज़ान मुकर्रम। तो अब हिदायत के लिए अल्लाह की जिम्मेदारी, और फिर अल्लाह सूरह दहर में कहेगा इन्ना अलैना सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर। एक तरफ तो कहेगा है कुरान कि ये सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, किसी और की हिदायत करेगा ही नहीं, सिर्फ मुत्तकी। और दूसरी तरफ कहेगा कि हमने तुम्हारी हिदायत की सबील कर दी है, तुम्हारी हिदायत का इंतजाम कर दिया है, अब तुम चाहो तो इस हिदायत को मान के मेरे शाकिर बंदे बन जाओ, और अगर चाहो तो इसी हिदायत को छोड़ के मेरे काफिर बंदे बन जाओ। काफिर किसको कहते हैं अज़ीज़ान मोहतरम? जो इनकार करे। किसका इनकार करे? अल्लाह का इनकार करे। बहुत लोग इनकार करते हैं, मुसलमान हुई में ना जाने कितने लोग हैं जो इनकार करते हुए नजर आ रहे। खुद कभी कभी आप पे भी और हम पे भी मुसीबत आती है तो एक दफा ईमान डोल जाता। अब आप जरा सोचिए कि अल्लाह ने जब कह दिया कि हमने तुम्हारी हिदायत की सबील कर दी है, अब तुम चाहो तो मेरे शाकिर बंदे बन जाओ और तुम चाहो तो काफिर बंदे बन जाओ, तो परवरदिगार वो सबील है कौन? जब तक वो सबील नहीं मिलेगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कुरान तो हिदायत कर नहीं रहा, हमारे पास बचा कौन है? तो अब हमारे पास है रसूल, रसूल बताएगा कि कौन है वो सबील। जब तक वो सबील हमारे समझ में नहीं आएगी, हम पूरी कायनात घूम ले, पूरा कुरान रट ले, हित कर ले, वही वाला हाल होगा जैसे सूरह जुमा के अंदर फरमा दिया अल्लाह ने कि मसलुल लज़ीना हुम बिल तौरात सुम्मा लम यामलू अस्बागा। इन अहले तौरेत का हाल ऐसा है जो तौरेत का बोझ एक गधे की तरीके से ढो गए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अहले बैत को नहीं पहचाना तो फिर ये हाफिज़ान कुरान का भी हाल उसी गधे की तरीके से हो जाएगा जो अस्ल को नहीं पहचान रहे हैं, बस नक्ल को लेके घूमते जा रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो नमाज अदा कर रहे हैं ये क्या? अब कुरान पूरे कुरान मजीद के अंदर नमाज नहीं मौजूद, और तो सलात आ रहा है, और दीगर जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे सलात आ रहा है। अल्लाह भी सलात करता है, युसल्लिमु तस्लीमा, आयत कुरान सूरह के अंदर तो सबके सलात का तरीका अलग अलग है। जानवर भी सलात करता है, फरिश्ते भी सलात करते हैं, इंसान भी सलात करते हैं, जिन भी सलात करते हैं। अल्लाह हमसे हमारे सलात के बारे में पूछेगा और कहेगा युकीमून सलात, पढ़ो नहीं कायम करो। कायम करना आसान बात नहीं होता अज़ीज़ान मोहतरम, इधर पढ़ा उधर भूल गए। पूरी दुनिया ये सोच गए, अब एक छठी माँ सलवात भेजे मोहम्मद, पूरी दुनिया छठी माँ की हदीस है, फरमा रहे इन गुत्तत माँ से बहा, इन कुबलत माँ से बहा। याद रखो अगर तुम्हारी नमाज रद्द हो गई तो तुम्हारे सारे अमाल रहेगा, और तुम्हारी नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। अगर तुमने 1 रुपए भी राह खुदा में खुलूस नियत के साथ दी है और नमाज राह गए तो वो भी गया। इसका मतलब यह है कि नमाज कबूल होना चाहिए, नमाज बिल्कुल खालिस बिल्कुल प्योर होना चाहिए। जो सलात हम अंजाम दे रहे अल्लाह के लिए सबसे बड़ी इबादत है, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और अल्लाह मोहताज ही नहीं है इसका।
कुरान जब आप पढ़ेंगे इतने इसके अंदर राज खुलते चले जाएंगे कि आपके होश। अल्लाह एक तरफ कहेगा कि हमने पैदा तुम्हें इबादत के लिए किया, पैदा ही नहीं किया मगर इसलिए कि इबादत करो हमारी। अब इबादत में सबसे अव्वल इबादत नमाज है। अब ये हक़्क़ुल अल्लाह है, हक़्क़ुल्लाह है, हक़्क़ुल इबाद नहीं। हक़्क़ुल्लाह अल्लाह को इख्तियार है, माफ कर देगा। हक़्क़ुल इबाद अल्लाह नहीं माफ करेगा। हमने आपका 10 रुपए मार दिया है, ये अल्लाह नहीं माफ करेगा, ये आप माफ करेंगे। चाहे आज मैं आपसे माफ करवा के मरूं या कयामत के दिन आपको मैं अपने अमाल दूं, ये अल्लाह नहीं माफ करेगा। नमाज अगर कज़ा हो गई वो अल्लाह के इख्तियार में माफ कर देगा। तो अब कैसे नमाज आ गई? बात बढ़ गया कि नहीं बढ़? अज़ीज़ान मोहतरम, हम इबादत को समझ ही नहीं। हर मुसलमान ये चाहेगा कि मेरी नमाज कबूल हो जाए। कभी उसने ये सोचा ही नहीं था कि जब हर इबादत के हर अमाल के कबूलियत की सनद नमाज है, तो कभी मुसलमान वो फिक्र करके सोच लेता कि इस नमाज की कबूलियत की सनद क्या है। भाई नमाज से सारी इबादतें कबूल है ना, और नमाज रहेगा तो सब रहेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज है उस पर फोकस किया जाए ना, नमाज कबूल करवा ले तो सारे काम हमारे तैयार हो जाएंगे। और नमाज ही नहीं कबूल तो कुछ नहीं कबूल। अब नमाज कैसे कबूल होगी? अब आते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हुसैन पुष्प सजदे में रसूल है, साहिब मेराज रसूल है। नमाज मोमिन की मेराज है और नमाज की मेराज सजदा है। एक साथ तीन मेराज एक जगह इकट्ठा, एक साथ तीन मेराज एक जगह इकट्ठा। सजदे में है वो नमाज की मेराज है, नमाज पढ़ रहे हैं वो मोमिन की मेराज है, और जो पढ़ रहा है वो खुद साहिब मेराज है। और उसके पुष्प पे कौन है? हुसैन अलैहिस्सलाम। अब आप समझे कि हुसैन कौन? कभी तकाजा हुसैन का नमाज से ना करना। वाह 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 वाह। हज़रत अबू तालिब के लिए आप क्या कहेंगे? कलमा वो क्यों पढ़े जो पालना आया है कलमा को? किसी ने कह दिया था, एक शेख किसी ने कहा था, शायद जुहैर साहब का है, उन्होंने पढ़ा कि एक शेख मुझसे बोला ये जोश खरोश में कलमा अबू तालिब ने पढ़ा कत्था जुबानी। एक शेख मुझसे बोला ये जोशो खरोश में कलमा अबू तालिब ने पढ़ा कत्था जुबानी। मैंने कहा है शेख जरा सोच के बता, मछली को कभी देखा है पीते हुए पानी? पालने आया अज़ीज़ान मोहतरम, आप उससे कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पाल के आपके गोद में दे। तो अब आप नमाज और हुसैन का तकाबुल तो करना ही मत। हुसैन बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं समझ सकते, हमारी हैसियत नहीं है वहां तक पहुंचनी। अब आप जरा सोचिए, बाद हुसैन तक अब सजदे तो बस इतना बताने की हिदायत क्या है और हमारी नमाज कबूल कैसे हो। सजदे में तीन मेराज इकट्ठा है, उस पे हुसैन और रसूल चाहते उठना फौरन ही वही आ रसूल सजदे में। साहिब शरीयत में भी है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई जानता ही नहीं कि 10 बार से ज्यादा अगर सजदे के या किसी 10 बार से ज्यादा कोई जिक्र किया जाए तो नमाज गई। ये हम जैसा नाअहल इंसान जानता है, रसूल को नहीं पता। 70 दफा कह दिया अल्लाहु अकबर। अब शरीयत को क्या हुआ? तो याद रखो शरीयत में और इश्क में बहुत फर्क होता है। जो चीज शरीयत में हराम होती है वही इश्क का तकाजा होता है। शरीयत में बेटे को ज़िबा करना हराम है, लेकिन जब इश्क के मेयार पे आप आएंगे तो इब्राहिम से कहा जाएगा कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी लाए खुदा में दो। अब आप समझे हुसैन क्या है? पुष्प पे हुसैन है। अब ये अल्लाह ने जो पुष्प पे हुसैन को बिठाया है वो ऐसे नहीं बिठाया, इतना बड़ा इतने ज्यादा बार रसूल ने कह दिया सुभान रब्बियल आला, बहन ने ऐसे नहीं कह दिया। अज़मत हुसैन समझो, कभी टेढ़ी ही मत करना कि ये नमाज और ये हुसैन इसमें अफजल कौन है, ये कुरान है, ये हुसैन इसमें अफजल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मातियात है। हुसैन है हय्युल क़य्यूम, जुमला कह दिया मैंने बहुत बड़ा।
हय्युल कय्यूम अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वमिनन्नास मन यसिनतु कला मर्ज़ातिल्लाह, और इंसानों में एक इंसान ऐसा भी है जो अपनी नफ्स को बेच देता है और अल्लाह की मर्जी को खरीद ले। तो जो भी वो इंसान था उसका नफ्स उसका नहीं और अल्लाह की मर्जी अल्लाह की नहीं। आप समझ में आया या अली मदद क्यों कहते हैं हम? क्योंकि मर्जी अली के पास है, नफ्स अल्लाह के पास है। मुसलमानों से सवाल, अल्लाह के नफ्स को मौत आएगी? अगर अल्लाह के नफ्स को मौत आएगी तो फिर अल्लाह अल्लाह नहीं, और अगर नहीं आएगी तो फिर या हय्युल या कय्यूम अली है या नहीं है? सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब आप समझ में आए हुसैन की कितनी बड़ी शख्सियत है। जब तक इसके अहले बैत आपके दिल के अंदर नहीं होगा, ना तो आपका नमाज कबूल है, ना आपका रोजा कबूल है, और ना ही आपको हिदायत मिलेगी। देखे कि जो बंदा कुरान नहीं छू सकता, जो मस्जिद में नहीं जा सकता, हुसैन के मजलिस में आ जाता है, ये परमिशन क्यों दी? क्या हुसैन का घर माज़अल्लाह खाकम बदाम मस्जिद से कमतर है कि वहां वो नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा? ये कैसे हो सकता है? जिसने नमाज बचाया, जिसके वजह से मस्जिद बची है, जिसके वजह से अल्लाह का घर बचा है, उसका घर इतना कम तक नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप समझे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो हुसैन की जब मजलूमियत देखेगा तो उसके दिल में अगर इंसानियत है और हरारत है तो उसके अंदर जज्बे ईमान पैदा होगा, और जब जज्बे ईमान पैदा होगा तो अल्लाह कहेगा फिर मैं तुझे हिदायत दूंगा जब तेरे अंदर ईमान का जज्बा आ जाएगा। आज भी हिदायत मोहताज है हुसैन इब्न अली, खुदा की कसम, वरना हुज्जत कायम हो जाती खुदा के पास। अल्लाह से कह देता हमारे पास भाई हम मुसलमान पैदा हुए, इसमें हमारी कौन सी क्वालिटी है? कोई काफिर पैदा हुआ, उसमें उसकी कौन सी खता है? अपने जैसा बनाते हैं ना बाप, हदीस रसूल है कि जो पालते वो ऐसा वैसे ही बना देते हैं। वो काफिर के घर में पैदा हुआ, काफिर बन गया। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं मुसलमान बन गया। आशिक अली के घर में पैदा हुआ, आशिक अली बन गया। कमाल क्या है इसमें? कमाल तो तब जब अंधेरे से निकल के नूर की तरफ आ जाए और नूर में दाखिल रह के नूर ही में रह जाए। इसीलिए बच्चों को मासूम कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने तो हमें मासूम बनाया था, गुनहगार तो हम खुद हुए ना। जैसे अल्लाह ने आपको भेजा है वैसे ही चले जाइए, आप कामयाब। नफ्स लेके जाएंगे तो आप नाकामयाब। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इस दर्द से मुतमस्सिक रहना पड़ेगी, मजबूरी है इंसान, मुमकिन ही नहीं। आप हिदायत पाइए, कुरान में साफ साफ मना करके जाइए, आप ढूंढते नहीं, पूरी दुनिया ढूंढा ली, हिदायत मिलेगी? हिदायत मिलेगा हुसैन के घर से। और जिनके दिलों में हुसैन के घर से पहरा बिठा गया, अल्लाह कहेगा ना कि अल्लाह ने खतमुल्लाह सवाई वाला अब्सार वाला समी गिसावतों, इनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, इनके आंखों के ऊपर इनको अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, इनके कुलूब पे पर्दा डाल दिया। इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, चाहे जितना समझाते हो मेरे रसूल, ये ईमान लाने वाले नहीं। तो जब रसूल के बद में रसूल की बातें सुन के ईमान नहीं लाए तो हमारी बातें सुन के क्या ईमान लाएंगे? ईमान वही लाएगा जो अल्लाह की नजर में मोमिन होगा। और मोमिन कौन होगा? वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, अगर इश्क अहले बैत है तो फिर अल्लाह की नजर में मोमिन है। आप देखे करबला जाइए, कितने ईसाई पहुंचते, कितने यहूदी पहुंच जाते, हर मजहब का आदमी वहां पहुंचता है, हिदायत वहां से लेता है। पहले करबला जाओ, वहां से हिदायत मिलेगी, तब काबा जाने का अख्तियार तुम्हें है। जब तक करबला नहीं जाओगे काबा समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके बेटे का घर है ना, जिसके बाप उस घर में पैदा हुआ है। अल्लाह दो ही लोगों से रिश्तेदारी रखता है, अल्लाह दो ही लोगों से गुफ्तगू करता है, और दो ही शख्सियत कायनात में अंदर है जिनसे खरीदो फरोख्त कर रहा है अल्लाह। एक तो अली है जिसके नफ्स को खरीद ले, और एक हुसैन, इसके लिए अल्लाह कहता है हुसैन पलट हमें अल्लाह
خدا کی قسم عشق حسین ایسا عشق ہے کہ دل میں نہ جانے کب سے بہت کہ جب آپ عید کے کپڑے بھی خریدنے جائیں گے نا تو ہمارا تو چھوڑیے ہمارے گھر کے عورتوں کا کہنا ہے ایسا کپڑا خریدنا جو محرم میں خوشی عید کی ہے، عید کی خوشی ہے، لیکن یاد حسین ہے ایسے کپڑے خریدو کہ محرم میں پہنے جا سکے، لال پیلا نہ خرید لینا۔ اے میرے مولا یہ کیا ہے؟ عجب نہیں مولا جواب دے کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گی جس کے مرد میرے بچوں کو مردوں کو ماتم کریں گے، جس کے بچے میرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ عزوکم اللہ، عزوکم اللہ، عزیزان محترم ذرا تصور کریے حسین آ ہم خریدوں حسین کے عشق میں اتنے ڈوبے کہ عید کا چاند چڑھتے ہی ہم محرم کی تیاری شروع یہ ایسے نہیں شروع کرتے۔ خدا کی قسم اپنے ماں کو دعا دیا کرے عزیز محترم جس نے علی ولی اللہ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا ہے، جس کی وجہ سے عشق حسین تمہارے دلوں کے اندر بڑے مارتا رہتا ہے۔ میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں آیا، وقت وہ آیا کہ جب نہیں آگے اور کہا یہاں سے خیمے اٹھا۔ عزیزکم اللہ، عزیزکم اللہ، عزیزان محترم حضرت عباس سے مولا نے کہا خیمے ہٹا لو، پورے واقعات کے بیچ میں چھوڑ دو۔ مولا نے خیمے ہٹا لیا، پھر عشق عاشق آ گئے، امام حسین نے خیمہ ہٹوایا ہے، حضرت عباس نے خیمہ لگایا۔ سارے بچے جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ خیمہ نہر کے پاس لگا ہوا تھا، اگر خیمہ قریب ہوتا تو پانی آسانی سے مل جاتا۔ امام حسین نے خیمہ ہٹوا دیا، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے نے یہ کہا ہو کہ اے بابا آپ نے خیمہ ہٹوا کے غلط کیا۔ اللہ اللہ کیسے کہہ دیتے یہ اہل بیت کے بچے جنہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں قربانی دینے آئے ہیں۔ عزیزان محترم پیاس گوارا ہے، ظلموں سے گوارا ہے، لیکن حسین کی عظمت میں کوئی آج گوارا نہیں۔ اللہ معبود کی دعا سے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود کی دعا سے محمد والے محمد کا جو بے روزگار انہیں غیر سے رزق عطا فرما۔ معبود کی دعا سے محمد والے محمد کا جو بے روزگار ان کے رزق میں برکت فرما۔ اللہ جہاں جہاں بھی اہل ایمان ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دعا آخر یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعلیم فرما اور ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔